स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट केस नंबर 3. Based at Shivamogga, Karnataka, Lotus Switchgears Limited (LSL) is a noted manufacturer, exporter, and supplier of electrical products like miniature circuit breakers, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स. अभी है ना, ये सब मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये बिजनेस वाले इतने चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये अपने को एमसीक्यू में पूछेंगे नहीं. ठीक है, तो यहाँ तक तो वो लोग ने उसका बिजनेस ही दिया हुआ है. And has a good network of factories and distribution channels. The business grew by leaps and bounds due to the sincere and dedicated efforts of founding directors. हाँ, अब ये मुद्दे की बात आ सकती है कि फाउंडिंग डायरेक्टर्स कौन है. अर्जुन, रामकृष्णन, रवि भट्ट, रमेश, रिपू मदन. ठीक है, तो समरी पे आते हैं. मैंने ये लिख के रखा है कि एलएसएल के डायरेक्टर्स कौन है. अर्जुन, रामकृष्ण, रवि भट्ट, रमेश, रिपू मदन. ठीक है, यहाँ से अपना वाला जो काम है वो स्टार्ट होता है. However, the company is facing some difficult times for the past 4 years or so. Arjun is a managing director while Ramesh and Ripu Madan are the full-time directors. ये भी मैंने समरी में ऐड कर दिया कि अर्जुन एमडी है, रमेश रिपू मदन फुल टाइम डायरेक्टर्स है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. In a quest to overcome the difficulties faced by the company, Raghuram, a visionary, was appointed as executive director at the EGM held on 12th January 2017. ठीक है, तो रघुराम को अपॉइंट किया गया एज एट EGM 12th January 2017. ठीक है. Shruti Components Private Limited (SCPL) is one of the subsidiaries of LSL. The board of directors of LSL wished to exercise the power to dispose of the whole investment in SCPL. Accordingly, Mahadevan, full-time company secretary of the company, was directed to ascertain the procedure for disposing of the company's investment in SCPL. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि SCPL is a subsidiary of LSL Limited और ये इनको डिस्पोज करना है. ठीक है, देखते हैं आगे क्या दिया है. Following data was extracted from the audited financial statements of LSL for the year ending 31st March 2020. अब पेड अप शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये सारी चीज़ें दी हुई है. अभी इसके साथ फिलहाल तो अपने को कुछ नहीं करना है. ठीक है, ये ऐसे ही रहने देते हैं. बेस्ड ऑन द अबव डेटा एंड कंसिडरिंग सेक्शन नंबर 257 of the Companies Act 2013, Mahadevan calculated the net worth of LSL as under. अब ये सेक्शन नंबर 257 का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, ये फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमको एमसीक्यू में इससे कुछ पूछा गया तो वी विल कम टू दिस. ओके, तो अभी के लिए मैं ये सब छोड़ रहा हूँ ऐसे ही. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन व्यू ऑफ द नेटवर्थ ऑफ 100 crores, Mahadevan informed the board that as per the relevant provisions, SCPL was an undertaking of LSL. ठीक है, मतलब वो बोल रहे हैं कि SCPL जो है वो LSL का अंडरटेकिंग है. अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर अंडरटेकिंग आपने अगर सेल करना होगा तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. देखते वो भी प्रोविजन अपन कनेक्ट कर लेंगे. अर्लियर ड्यूरिंग अप्रैल 2019 इन द, यहाँ पे ना समरी बुक में आप ये यहाँ पे डाल सकते हो कि SCPL जो है वो LSL की अंडरटेकिंग है. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने सब्सिडरी डाल के रखा है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि इट इज़ एन अंडरटेकिंग ऑफ LSL. ठीक है. Earlier during April 2019, in the course of normal business, LSL entered into a contract for the continuous supply of some consumables and components with Swastik Supplies Limited for a period of 3 years to be renewed with mutual consent thereafter. Ramesh, the full-time director of LSL, was not an interested party at the time of entering into this supply contract with SSPL. However, during the second year of the supply contract, Rajesh, son of Ramesh, purchased about 30% of the equity shares of SSPL through one of his family-owned business entities and also lent 25 lakhs as unsecured loan to SSPL. Ramesh did not inform LSL or the board of directors regarding the new development since he was of the opinion that there was no need for such disclosure. However,
The company secretary and the board had their own reservations after the matter came to their knowledge from the third party. ठीक है, तो ये रमेश जो है उसके बेटे ने SSPL का स्टेक एक्वायर किया है टू 30%. ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये रिलेटेड पार्टी होता है कि नहीं, इसके लिए अपन देखेंगे रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या है जो अपने मॉड्यूल में दिया हुआ. ठीक है. During the statutory audit of financial year 1920, while verifying the earlier year's documents in connection with the certain matter, the newly appointed auditors observed that the appointment of Raghuram as an executive director was invalid by reason of a certain defects and also disqualification. During the month of August 2020, the statutory auditors discussed the issue of irregular appointment with the board of directors of LSL. ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे समरी में डालना पड़ेगा कि इसका जो अपॉइंटमेंट था वो डिफेक्टिव था. ठीक है, ये सेकंड पैरा में अपने को दिया हुआ था कि रघुराम का अपॉइंटमेंट किया गया है EGM में, और अभी के पैरा में अपने को दिया गया है कि वो अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है. ठीक है. The board appraised the auditors that since his appointment as executive director of the company, Raghuram had and participated in several board meetings and assented to various decisions which had both pecuniary and operational impact. In addition, the board had also passed several resolutions during that period. Accordingly, the board in one of its meetings decided by passing a resolution that the wrongfully appointed director Raghuram shall make good the losses, if any, for the period he remained executive director, but all the resolutions passed during his period shall be valid and stand good. अब ये पैरा ना एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि अगर आपने अगर चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जहाँ पे भी बोर्ड को समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनवैलिड था या अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं था, तो उसने जो भी काम किए हुए हैं अब तक वो सारे इनवैलिड नहीं होंगे. ठीक है, अगर उसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा तो वो इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड होगा. लेकिन अगर उसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हुए होंगे, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स किए होंगे जो फ्रॉडुलेंट है, तो वो उसको रीपे करने पड़ेंगे. वी विल रिकवर फ्रॉम दैट डायरेक्टर अगर उसने कुछ उसकी वजह से कुछ लॉसेस हुए हैं या उसकी वजह से कुछ फ्रॉड्स हुए हैं. ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ प्रॉफिट करके दिया है कंपनी को तो वो इनवैलिड नहीं हो सकते. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. One of the investors, Raman, had invested substantially in the quality shares of Lotus Switchgears Limited, मतलब LSL में उसमें इन्वेस्ट किया है. However, he was quite worried about his investment after going through the latest audited financial statements of 1920, for he found that there was continuous downward trend in EPS. He was of the opinion that the directors of LSL have been getting exorbitant remuneration resulting in lesser profits for the company. ठीक है. Accordingly, he approached the registered office of the company at Shivamogga and requested for inspection of the copies of the recent service contracts of Arjun, the MD, as well as Ramesh and Ripumadan, the full-time directors of the company. अभी देखो ये है ना, ये हम लोग ने यहाँ पे भी लिख के रखा हुआ है, तो अपने को वापस वो चीज़ मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है. He was utterly surprised when he was informed by the official concerned that the service contracts with Arjun, Ramesh and Ripumadan were not in writing and therefore could not be produced for inspection. However, he was also informed that only copies of the written memorandum setting out the terms and conditions of the service could be provided for inspection. ठीक है, ये valid है. Raman was not convinced and thought it to be a fraudulent practice for which the company and every defaulting officer of the company must be punished. LSL, after complying with the required legal formalities, had made some political contributions and had incurred certain expenses during the financial year 1920. The details are as under. अब अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का आपने प्रोविज़न पढ़ा हुआ है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है कि डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस वो क्या क्या होते हैं वो अपन पढ़ेंगे. ठीक है. The details are as under. Payment of 10 lakhs as contributions to LMS party. कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है LMS पार्टी जिसको 10 लाख दिया हुआ है.
Donation of 2 lakh for a public function and a dance program of Ravi Shankar, a film star, and it can be reasonably presumed that his activities support जनता वेलफेयर पार्टी, मतलब ये भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही हुआ. Publication cost of rupees 1 lakh incurred for inserting an advertisement in souvenir published on behalf of जनता वेलफेयर पार्टी, ये भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हुआ. Publication of pamphlets costing 1 lakh, though not meant for any political party but incurred for promoting a candidate for the next state elections, ये भी political contribution ही हुआ है. Deemed political contribution में अगर आप पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें जो किसी को प्रमोट करने के लिए है या किसी भी पार्टी से रिलेटेड है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे रिलेटेड है, तो वो सारी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में ही जाएंगी. ठीक है. LSL disclosed its financial statements, rupees 11 lakh as political contributions and 3 lakh as advertisement and business promotion expenses. ठीक है, ये हो गया अपना केस. अब ये जो लास्ट का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो मैंने समरी में कवर नहीं किया हुआ है क्योंकि ये लेटेस्ट ही है. ठीक है, अगर आप पेज नीचे वाले पेज पे आ जाओगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं किया. ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं. इसमें मैंने जानबूझ के वो पॉइंट कवर नहीं किया है. अगर आपको चाहिए, आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो आप पूरा पूरा यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट मत करना. ठीक है, अब MCQ पे आते हैं. Raman, who had invested substantially in LSL, was informed that only copies of written memorandum setting out the terms and conditions of the service could be provided for inspection, as no written service contracts with Arjun as well as Ramesh and Ripu Madan were available. Raman was not convinced and thought it to be a fraudulent practice for which the company and every defaulting officer of the company must be punished. From the following options, choose the most appropriate one. देखो, इसके लिए ना किसी को पनिशमेंट वगैरह कुछ हो नहीं सकती है. अगर उसको वो कॉपी दे रहे तो वो चीज़ वैलिड है. ठीक है, तो ये जो सारी पेनल्टीज़ है वो आएंगी ही नहीं. पेनल्टी ऑफ 1 लाख, पेनल्टी ऑफ 50,000, 25,000. तो 50 ऑप्शन क्या है देखते रीड करके. It shall be in order if the company provides copies of the written memorandum setting out the terms and conditions of the services for inspection. ठीक है, अगर कंपनी दे रही है वो टर्म्स एंड कंडीशंस तो वो सेट इन ऑर्डर होने चाहिए. अब देखते हैं इसका आंसर क्या है. 3.1 का आंसर है बी, इट शैल बी इन ऑर्डर. ठीक है, ये आपको मैं कनेक्ट करवाता हूँ, मुझे पता है ये आपको जमा नहीं रहेगा. ठीक है, सेक्शन नंबर 190, मॉड्यूल पेज नंबर 3.65 एंड 3.66. मीटिंग्स का जो चैप्टर है 3.65. सी, contract of employment with managing or full-time directors. A company may enter into a contract of employment with managing or WTD. may लिखा है यहाँ पे. ठीक है, Section 190 of the Act contains provisions relating to keeping of such contract of employment. These provisions are stated as under. Maintenance of copy of contract of employment. Every company shall keep its registered office where a contract of service with managing or WTD is in writing, a copy of the contract, or where such a contract is not in writing. मतलब अगर राइटिंग में नहीं रहेगा तो उसको कोई पनिशमेंट और ये सब नहीं है, वो नॉट इन राइटिंग रहेगा तो भी चलेगा. रिटर्न मेमोरेंडम सेटिंग आउट इट टर्म्स. ठीक है, तो ये मेमोरेंडम जो है वो उसको अवेलेबल करवा के दिया हुआ है. ठीक है, और ऐसा ये लोग ने सेक्शन नंबर 190 में लिखा हुआ है तो हम लोग वही फॉलो करेंगे. इसके लिए कोई पेनल्टी या कुछ भी लगेगा नहीं. ठीक है, अभी आते हैं 3.2 पे. 3.2 क्या कहते हैं. According to Mahadevan, full-time company secretary, SCPL was an undertaking of LSL, right? If the board of directors of LSL decides to dispose of its investment in SCPL, considering SCPL as an undertaking of LSL, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शैल बी एप्लीकेबल. देखो, कोई भी अंडरटेकिंग अगर आपको सेल करना है ना, कोई बड़ा काम करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं मीटिंग्स के चैप्टर में आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट
पास करना ही पड़ेगा, विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेक्शन नंबर 180 मॉड्यूल का पेज नंबर 3.31, ठीक है, सेक्शन नंबर 180 देखो, पहला ही दिया हुआ है, मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पावर शैल बी एक्सरसाइज आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, उसमें से पॉइंट ए, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द whole or substantially the whole of the undertaking of the company, or where the company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any of such undertakings। ठीक है, मतलब इसमें कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आप वही MCQ या फिर वही ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन मेंशन है। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो है नहीं, तो मतलब ये है नहीं। बाय मीन्स ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन असेंटेड टू बाय ऑल डायरेक्टर्स, ये भी आएगा नहीं। ठीक है, जूरिसडिक्शनल रजिस्टर वाला कोई पॉइंट नहीं है, तो बचता है कि लास्ट वाला। अब ये पढ़ के देखते लास्ट वाला क्या है। The board of directors of LSL shall exercise the power of disposing of its investment in SCPL, considering SCPL as an undertaking of LSL, only with the consent of the company by a special resolution। ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ पे ही पढ़ा कि स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना वो सेल नहीं कर सकते, तो मतलब 3.2 का आंसर होगा डी। आता है यहाँ पे 3.2 का आंसर है डी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, एक बार भी पढ़ा हुआ है और आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, कौन सी चीज़ के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, तो वो आपको बहुत इजीली आ जाएगा। इसके लिए इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बस ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पढ़ा ही नहीं है या फिर एक बार पढ़ा है और आपको ध्यान में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। From the case scenario, it is observed that during the second year of the supply contract, Rajesh, son of Ramesh, purchased about 30% of the equity shares of SSPL through one of his family-owned business entities, and also lent rupees 25 lakhs as unsecured loan to SSPL. Ramesh did not inform LSL or the board of directors regarding the new developments, since he was of the opinion that there was no need for such disclosure. Choose the correct option which is most appropriate in the given situation। ठीक है, अब यहाँ पे सीन ऐसा है ना कि हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि राजेश का सन जो है रमेश, उसने 30% ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्ड किया है SSPL का। लेकिन अपने को पहले रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि सेक्शन नंबर 184 मॉड्यूल नंबर 3.13 ये भी थोड़ा सा टफ और कॉम्प्लिकेटेड MCQ था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा गलत गया था। मैंने रिलेटेड पार्टी समझ के वो वाले प्रोविज़न सेलेक्ट करके वैसा किया था, बट मैंने जब ये देखा, ठीक है, मीनिंग ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब कैसा है ना कि राजेश अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब वो इंटरेस्टेड होता, उसके बाद का जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होता है उसमें उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि भाई ये मेरा इस पर्टिकुलर एंटिटी में इंटरेस्ट है। और उसके बाद जब वो ईयर का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होता है उसमें भी उसको वो डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि ये मेरा इसमें मेरा होल्डिंग है और इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रमेश का जो बेटा है राजेश, उसने होल्ड किया हुआ है। और अगर हम मीनिंग ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर में जाए तो यहाँ पे वो लोग ने लिखा है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीन्स एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज इन एनी वे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू or to be entered into with a body corporate in which such director or such director in association with other director। मतलब हमारे केस में रमेश और कोई इसी कंपनी का डायरेक्टर जब दोनों मिल के होल्ड्स more than 2% shareholding of that body corporate
or is a promoter, manager, chief executive officer of that body corporate, or with a firm or other entity in which such director is a partner, owner or member as the case may be. मतलब अगर रमेश इस कंपनी में किसी कंपनी में डायरेक्टर होता, पार्टनर होता, ओनर होता या मेंबर होता, और वो कंपनी अगर 30% होल्ड करती एसएसपीएल का, तो वो इंटरेस्टेड होता। बट यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि यहाँ पे राजेश जो है, जो रमेश का सन है, अब वो किसी और कंपनी में कितनी होल्डिंग करता है और वो कितना एसएसपीएल का परचेस करता है इक्विटी शेयर्स, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे अगर दिया होता कि यहाँ की रमेश की कोई फैमिली की कंपनी है जिसमें रमेश खुद इंटरेस्टेड है और वो कंपनी 30% अगर एसएसपीएल का होल्ड करती, तो वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो जाता, और फिर उसको वो सारे कंप्लाइंस करने पड़ते कि उसको बताना पड़ता कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर अगर होल्डिंग चेंज होता तो उसको अकॉर्डिंगली बताना पड़ता कि मेरी होल्डिंग इतने इतने से चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि रमेश इज नॉट एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ठीक है, तो अभी अपन आगे वाले जो चॉइसेस अपने को दिए है ABCD, दिखता है क्या क्या दिया हुआ है। द कंटेंशन ऑफ रमेश इज करेक्ट सिंस इट इज हिज सन राजेश who is directly interested in SSPL because of his direct dealings and not he personally। अब ये आंसर सही होना चाहिए क्योंकि उसका बेटा इंटरेस्टेड है, वो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है, या ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। ओके, बी वाला क्या है, द कंटेंशन ऑफ रमेश इज करेक्ट सिंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड इन। नहीं, वो बाद में भी होता तो भी उसको डिस्क्लोज करना ही पड़ता। द कंटेंशन ऑफ रमेश इज नॉट करेक्ट since he is required to disclose his direct or indirect concern or interest in SSPL at the first meeting of the board of director held after he becomes so concerned or interested। हाँ, अगर वो खुद इंटरेस्टेड होता तो ये चीज़ करेक्ट था कि उसको डिस्क्लोज करना पड़ता। डी क्या दिया हुआ है, द कंटेंशन ऑफ रमेश इज नॉट करेक्ट सिंस ही इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंसर्न और इंटरेस्ट इन SSPL ड्यूरिंग द रिन्यूअल ऑफ द सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी आफ्टर 3 years। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो इंटरेस्टेड जब भी होगा उसको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। तो हमारे केस में ये वाला जो है आंसर नंबर ए वो करेक्ट है। देखते हैं अपन, सी 3.3 का आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट है। द कंटेंशन ऑफ रमेश इज करेक्ट सिंस इट इज हिज सन राजेश who is directly interested in SSPL because of his direct dealings and not he personally। अब ये जो मीनिंग दिया हुआ है वो वापस एक बार से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मेरे को ये कंफ्यूजिंग लगा था, मेरे को ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये तभी होता अगर रमेश खुद होल्ड करता वो कंपनी पे जिस कंपनी ने 30% SSPL के होल्ड करे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बेटे ने किया है तो यहाँ पे उसका कोई कंसर्न नहीं है इससे। अभी 3.4 पे आते हैं। According to the case scenario, the board of directors of LSL stated that since January 2017, Raghuram had participated in several board meetings and assented to various decisions which had both pecuniary and operational impact. In addition, the board had passed several resolutions during that period. Accordingly, the board in one of its meetings decided by passing a resolution that the wrongfully appointed director Raghuram shall make good the losses, if any, over the period he remained executive director, and all the resolutions passed during his period and assented to by him shall be valid and stand good। ये करेक्ट है, मतलब ये लिखा हुआ ही है लॉ में। ठीक है, अभी इसका अपन प्रोविज़न देखना चाहें तो सेक्शन नंबर 176 मॉड्यूल 3.41, ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन 176 डिफेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन। ठीक है,
No act done by a person as a director shall be deemed to be invalid if it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification, or had been terminated by virtue of any provision contained in the Companies Act 2013 or in the articles of the company. Acts not valid if done after noticing his appointment to be invalid or to have terminated. मतलब ये उनके नोटिस में आने के बाद भी अगर ये कंटिन्यू होता है ना, तो वो फिर वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, वो दोनों इनवैलिड ही होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आंसर्स देखते हैं क्या क्या है। द डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज करेक्ट बिकॉज नो एक्ट डन बाय अ पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड if it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification, etc. ये सही है। The board is required to get all the resolutions passed during the tenure of Raghuram and assented by him, ratified by an ordinary resolution at a general meeting of shareholders. ऐसा कोई provision नहीं है। The board is required to get all the resolutions passed during the tenure of Raghuram and assented by him, ratified by special resolution at GM of the shareholders. ये भी नहीं है। The board is required to cancel all the resolutions passed during the tenure of Raghuram and assented by him since they were void and नहीं, ये भी नहीं है। तो मतलब करेक्ट आंसर है ए। 3.4 का करेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया। ये मैंने आपको मॉड्यूल में भी दिखा दिया। ये प्रोविज़न पढ़ लेना है, बहुत ईजी है, इसमें कोई लॉजिक लगाने का या कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट LSL, after complying with the required legal formalities, made some political contributions and incurred some expenses during the financial year 18-19. LSL showed in its financial statements 11 lakh as political contributions and 3 lakh as advertisement and business promotion expenses. From the following options, choose the correct one. अभी देखो, ये पूरा का पूरा जो खर्चा है वो पॉलिटिकल के इसमें ही आएगा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में ही आएगा। कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई ऐसा कुछ अदर खर्चा वो लोग नहीं दिखा सकते। तो हम अगेन इसके चॉइसेस पे आते हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मेरे को ये आंसर सही लग रहा है। LSL वॉज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द सम्स टोटलिंग ₹14 lakhs एज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये आंसर यही होना चाहिए 3.5 का सी। कोई भी तुम एडवर्टाइजमेंट या बिजनेस प्रमोशन ये सब नहीं दिखा सकते। ये मैं आपको मॉड्यूल में दिखा देता हूँ। सेक्शन नंबर 182 सब सेक्शन 2, मॉड्यूल का पेज नंबर है 3.36। डीम्ड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नेक्स्ट लेवल कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और डोनेशन और सब्सक्रिप्शन और पेमेंट given by a company to a person who to its knowledge is carrying on any activity which at the time at which such donation subscription payment was given can reasonably be regarded as likely to affect public support or political party, या फिर एडवर्टाइजमेंट या पब्लिकेशन का जो एक्सपेंसेस है वो भी कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अपना पाँचों का 5 क्वेश्चंस हो चुका है केस सिनेरियो 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने समरी भी बना दी इसकी, क्वेश्चंस भी देख लिए, लिंक भी करवा दिए। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर कवर्ड है, चैप्टर नंबर 3 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आगे के वीडियोस में अपन आगे के MCQs देखेंगे, उसकी भी समरी और डिटेल्ड आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी इसमें अगर आपको और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए और कुछ एडिशंस चाहिए तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता देना। मैंने कोशिश की है कि सारा कुछ ढंग से कवर करूँ। अगर फिर भी कुछ रह गया हो या फिर कुछ आपको नहीं समझा हो तो मेरे को बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।